العلم نور, knowledge is light, knowledge is light. العلم نور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل، وہ سلسلہ جس کا لاکھوں عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے، علم دین کی شمع کو لاکھوں دلوں میں منور کرنے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل عشق رسول کے ذریعے دلوں کو تڑپانے کے لیے، وہ سلسلہ یعنی ذہنی آزمائش آج سے شروع ہو چکا ہے. مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی خوشی دیدنی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور اب اتوار، پیر، منگل اور بدھ 4 دن براہ راست ہم آپ کے ساتھ ہوا کریں گے. 9 بجے ہم براہ راست ہوئے ہیں، اور ایک اور اعلان بھی کر دوں، وضاحت بھی کر دوں کہ کل سے یہ سلسلہ انشاءاللہ روزانہ 8:30 بجے براہ راست شروع ہو جایا کرے گا، کیونکہ بہت سارے ناظرین کی بعض اوقات ہمیں میسیجز اور کالز آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سونا ہوتا ہے، صبح اسکول مدرسہ ہوتا ہے، مگر ذہنی آزمائش جب تک ختم نہ ہو وہ آرام نہیں کرتے. تو ہم نے ان کا بھی خیال رکھا ہے اور سلسلے کو کچھ مزید پہلے کر دیا ہے. یاد رہے کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ڈبل 12 ٹیمیں پورے پاکستان سے تشریف لا رہی ہیں، اور انشاءاللہ 24 ٹیموں کے درمیان یہ مقابلے ہوں گے. ہر ٹیم کو ایک موقع ضرور ملے گا، اگر وہ پیچھے رہ گئے دوبارہ آگے آنے کا موقع ملے گا. روزی مقابلے ہوں گے اور خوبصورت سوالات اور سیگمنٹس کے ذریعے سلسلہ آگے بڑھے گا. ان 24 ٹیموں میں سے 16 ٹیمیں سلیکٹ کر لی جائیں گی. 16 ٹیموں کے درمیان پری کوارٹر فائنل، پھر وہاں سے 8 ٹیمیں آگے کوالیفائی کریں گی کوارٹر فائنل کے لیے. ان 8 میں سے 4 ٹیمیں آگے جائیں گی سیمی فائنل کے لیے، اور پھر وہ 2 خوش نصیب ٹیمیں ہوں گی جو ذہنی آزمائش کے منچ کی زینت فائنل میں بنیں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سلسلے میں ہم برکتیں لوٹیں اور اخلاص کے ساتھ شرکت کریں. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں ناظرین، اچھی آئیے نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس سلسلے میں شرکت کریں گے. میری ٹیم ذہنی آزمائش کی جو ہے، میں خود بھی اس نیت کو کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا میرے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کیا کریں گے. علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ شرکت کریں گے. اہم باتوں کو کوشش کریں گے یاد کر لیں، اور جہاں جہاں انشاءاللہ عمل کرنے کی بات کی جائے گی تو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس سلسلے کی دعوت کو بھی عام کریں، کیونکہ یہ سلسلہ علم دین پھیلانے کا ایک بہت دلچسپ ذریعہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ہر سال آپ کے لیے ہم ایک خوبصورت منچ بناتے ہیں، ایک پیارا سا اسٹیج بناتے ہیں. ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم اس میں بڑی کوشش کرتی ہے. آئیے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ذہنی آزمائش کا اسٹیج منچ دکھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ قاری صاحب موجود ہیں. اللہ کے مبارک کلام سے پھر ہمارے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Knowledge is light. العلم نور. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ اسٹیج بھی پسند آیا ہوگا. ایک اور بڑی خوبصورت بات میں ذہنی آزمائش بلکہ بدری چینل کے بارے میں کرنا چاہوں گا. نارملی میرا بھی کچھ چینلز میں جانا ہوا ہے، جب چینلز میں کوئی میگا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے اسٹیج پر بڑا خرچ کیا جاتا ہے، بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق بعض اوقات ملینز میں، جی ہاں کئی ملینز روپیز خرچ ہوتے ہیں اس اسٹیج کو بنانے کے لیے، اس پورے اسٹوڈیو کو سجانے کے لیے. لیکن الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے بہت کفایت شاری کا مظاہرہ کر کے، یوں سمجھیے کہ اگر وہاں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 10% بھی بعض اوقات خرچ نہیں ہوتا. اور یہ ماشاءاللہ کیونکہ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ یہ لوگوں کے ڈونیشن پر چلنے والا چینل ہے، تو ہم سادگی بھی ساتھ رکھتے ہیں، اخراجات کو بھی بچاتے ہیں. وقت پڑنے پر انشاءاللہ آپ کو اس کی کاسٹ بھی بتائیں گے. اور اللہ کی رحمت سے ہر سال کی طرح اس سال ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش سے محبت کرنے والے، علم دین سے محبت کرنے والے، مدنی چینل سے محبت کرنے والے جیسے پہلے ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں، اس بار بھی ساتھ دیں گے. آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. قبلہ قاری صاحب ہمارے
ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ کے پاک کلام سے ذہنی آزمائش سیزن 15 کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم کے پاک کلام سے ہمارے پروگرام کا ذہنی آزمائش سیزن 15 کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ سلسلے میں آگے جا کے حسب معمول نعت شریف بھی ہوگی، بلکہ مل کر نعت شریف بھی پڑھیں گے. ہمارے ہر سلسلے میں ہی اللہ کی رحمت سے نعت خوانی ہوا کرتی ہے. ناظرین، یہاں ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کی کالز ہمارے سلسلے میں ہم ضرور شامل کیا کریں گے. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. اپنے تاثرات، اپنے جذبات، اپنے مشورے آپ ابھی ہمارے اس پروگرام کے بارے میں دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹریکشن کا طریقہ ہمارا آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں. ایک نہیں بلکہ دو سوال پوچھتے ہیں. ایک کا جواب آپ نے موبائل کے ذریعے SMS کے ذریعے دینا ہوتا ہے، اور ایک کا جواب آپ نے کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے دینا ہوتا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ آپ کو ایپ سٹور پہ بھی مل جائے گی یا آپ کو گوگل پلے پہ بھی مل جائے گی. آپ جائیے اور وہاں جا کے پلے سٹور سے یا ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس میں روزانہ ذہنی آزمائش کے پروگرام میں جب جب لائیو پروگرام ہوا کرے گا آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. آپ کے پاس اس میں آپشنز بھی ہوں گے. آپ صحیح جواب دے کر ہو سکتا ہے آج ہی قرآن دازی کے ذریعے انعام حاصل کریں. تو آج پہلا سوال جو کوئز ایپلیکیشن پہ پوچھا جا رہا ہے، تصوف کی اصطلاح میں عجب کسے کہتے ہیں؟ تصوف کی اصطلاح میں عجب کسے کہتے ہیں؟ 4 آپشن آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے: تکبر، ریاکاری، خود پسندی یا خوش اخلاقی. ان 4 میں سے ایک جواب درست ہے. کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، جواب دیجئے. کیا معلوم جب اس پروگرام کے اینڈ میں ہم کوئز ایپلیکیشن کی قرآن دازی کریں تو آپ ہی کی ID نکل آئے. ہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب بھی کوئز ایپلیکیشن پر جواب دیں اپنی ID نمبر سیو کر لیجئے گا، کیونکہ جب آخر میں ہم جواب دیتے ہیں اور قرآن دازی کرتے ہیں تو ID نمبر ہی کا اعلان کیا جاتا ہے. پھر ناظرین سے ایک سوال ہے جس کو SMS
क्वेश्चंस के ज़रिए आपने जवाब देना है, उसकी फिर हम आखिर में कुरान अंदाज़ी किया करते हैं। सवाल यह है कि शुगून की कितनी किस्में हैं, शुगून की कितनी किस्में हैं, और ये रिसाला बदशुगूनी जो है इसके ज़रिए आपको इंशाअल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा। तलाश कीजिए जवाब को, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आप हमें जवाब दे सकते हैं। आज हमारे साथ सिलसिले में हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे सिलसिले में बार बार जलवा फरमाते हैं, इनकी बातें दुनिया में बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं। मेरी मुराद मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद सोबान अत्तारी भाई हैं। आज वो ऑल द वे लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, लाइव हमारे साथ हैं। उनसे भी उनके तासुरात लेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इन्होंने ऑडिशन में भी कुछ शहरों में जाकर ऑडिशन भी किया है। मैं चाहूँगा कि दोनों टीमों को मैं अब स्टेज की दावत दूँ। आज दो टीमें हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह जब वो आते हैं तो फिर देखते हैं कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं और क्या जज्बात लेकर आए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है, आइए और मंच पर आकर तशरीफ़ रखिए। जी knowledge is light, knowledge is light. जी सोबान भाई कुछ बताइए, कैसा रहा आपका सफ़र ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन का, और आज बराह रास्त सिलसिला, पहला सिलसिला, आपकी भी शिरकत, आपकी क्या तासुरात है? हुजूर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोबत में हम हाज़िर हैं। हमारा फेवरेट प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश पूरी दुनिया में जो देखा जाता है, सीज़न 15 तक पहुंच गया। हुजूर आपको बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाइडेंस एक एक जगह पर आपकी हमारी रहनुमा होती है। और इस दफ़ा जो हमारे ऑडिशंस थे, कई नए शहर भी हमने शामिल किए। हर दफ़ा जो शहरों का क्राइटेरिया है वो हम थोड़ा चेंज भी करते हैं, रिस्पॉन्स देखा जाता है वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जोशो खरोश था, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की शिरकत हुई। जामिअतुल मदीना टॉप पर है, प्राइम इसकी शिरकत रही। फिर कई ऐसे डॉक्टर्स भी कहीं पर आए, इंजीनियर्स भी थे, वैसे कॉलेज के भी हमारे स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो निसाब हम देते हैं, चलें एक तो कन्फर्मिटी होती है कि वो लोग निसाब अच्छी तरह पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर अशआर को भी बड़ी अच्छी तरह इन्होंने याद किया। और फिर भाई पूरे प्रोसेस से गुजार के हमारे दानियाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर गए, डायरेक्टर जवाद भाई हर जगह पर तशरीफ़ लेकर गए, और फिर मुख्तलिफ स्टेप्स के बाद हर शहर की टीम निकलती है। और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है, सबके सामने हो रहा होता है, कैमरा भी लगा होता है और उसको दिखाया भी जाता है। वाकई जो क्रीम है उसको हम लेकर आते हैं। और माशाल्लाह ये सिलसिला 15वें सीज़न तक पहुंचा है। अब इंशाल्लाह 2 माह तक आपसे बरकतें हासिल करेंगे, मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी देखेंगे, इल्म दीन भी सीखेंगे, आपकी ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। जी जनाब, हमारे साथ जो आज दो टीमें हैं, एक सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, हम भी सिंध में ही हैं, कराची में, लेकिन एक सिंध के एक और शहर से तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे साथ दूसरी टीम पंजाब के एक शहर से आए हैं। मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं बाबुल इस्लाम सिंध के बड़े ही मशहूर शहर हैदराबाद से। आइए टीम से तारुफ़ लेते हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या नाम है इनके, और पहुँचे कैसे, फिर ये भी देखते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है, और मेरा ताल्लुक़ पनियाला शरीफ डेरा इस्माइल ख़ान से है। और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदी मरकज़ के दर्जा दावरतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म, और हैदराबाद में मेरी सिलेक्शन है। क्या बात है जनाब, देखें कि ये है ज़हनी आजमाइश। इन्होंने पहले बंदे ने हमारे लिए भी आजमाइश डाल दी है, रहने वाले कहीं और के हैं, पढ़ते कहीं और हैं, टीम कहीं और जाके सेलेक्ट की है। इसका राज पूछेंगे, लेकिन पहले दूसरे इस्लामी भाई का तारुफ लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अतारी है। मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ मुरीद हुसैन है, और मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो ज़िला राजनपुर से, और मैं बाबुल मदीना कराची 6 ईयर का तालिब इल्म हूँ, और साथ साथ BA भी कर रहा हूँ। अच्छा, और सिलेक्शन आपकी भी हैदराबाद में हुई है? जी माशाल्लाह। चलें जनाब, तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम इरफान मेमन है। मैं हैदराबाद का ही रिहायशी हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, एक तो हैदराबाद वाला है इसमें। जी और हैदराबाद जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना फंडी टाउन में 6th ईयर में तालिब इल्म हूँ, और साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इसहाक भाई, आप पहले भी ज़हनी आजमाइश में शिरकत कर चुके हैं, कौन सी टीम में आप पहले आए थे? विहाड़ी में। विहाड़ी में, और सीज़न 14 में ही थे? जी माशाल्लाह। कहाँ तक पहुंची थी विहाड़ी की टीम? सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। अब इन दोनों बच्चों की जो मुझे स्टोरी लग रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये कराची में चूँकि पढ़ते हैं और इन्होंने शायद ये देखा होगा कि कराची में कंपटीशन ज़्यादा है, तो हैदराबाद जाके ऑडिशन दिया, या कराची में भी दिया था ऑडिशन? नहीं, कराची में दिया ही नहीं। कराची में बाद में था, पहले हैदराबाद। अच्छा, ये गए होंगे पहले हैदराबाद में, सेलेक्ट ना हुए तो फिर कराची में दे देंगे। अच्छा चलें जनाब, अब मेरा ख्याल है इस पर कुछ गौर करना होगा हमें कि हैदराबाद में से एक ही इस्लाम भाई सेलेक्ट हुए और बाकी इस्लाम भाई यहाँ से जाकर वहाँ सेलेक्ट हो गए। बहरहाल हैदराबाद टीम को अच्छी सपोर्ट उम्मीदें मिल गई होगी, और हमारी जो टीम गई होगी ऑडिशन के लिए, जो बेहतरीन ऑप्शन होंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया गया होगा। आइए देखते हैं हैदराबाद के ऑडिशन के कुछ मनाजिर। मदनी चैनल की टीम पहुंच चुकी है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में।
रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। जनाजे की नमाज में क्या क्या रुकन है? जनाजे की नमाज में 2 रुकन है, 4 तकबीरें और क़याम खड़ा रहना। एक काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रोते हुए तैयबा को बारात चलियो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। माशाल्लाह तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और सब महापारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माशाल्लाह जनाब, हैदराबाद की टीम हम तक पहुंची। कैसे पहुंची आपने देखा। मेरी बाईं तरफ खानका शरीफ, बहुत सारे इस्लामी भाइयों के लिए ये नया नाम होगा। आइए इन्हीं से पूछते हैं ये खानका शरीफ कहाँ है और इसे खानका क्यों कहा जाता है। लेकिन पहले अपना नाम और अपना शोबा बताएंगे जी। मेरा नाम मोहम्मद राहिल गुलजार है, वालिद साहब का नाम गुलजार अहमद है। मेरा ताल्लुक़ केरोड़ पक्का से है और दुनियापुर में दर्जा सादसा का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ साथ BZU यूनिवर्सिटी में BS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरी सिलेक्शन खानका शरीफ। खानका शरीफ ये भावलपुर वगैरह के करीब का कोई इलाका है? जी जी, भावलपुर के करीब है। जी जनाब, ये जुनूबी पंजाब का एरिया है जी। दूसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल अहमद बिन हफीज़ अब्दुल खालिक अतारी है और मैं जामियातुल मदीना खानका शरीफ में दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अतारी, वल्दियत बशीर अहमद और मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना खानका शरीफ का दर्जा खामसा का तालिब इल्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मैं शायद कहूँ तो गलत नहीं होगा सुभान भाई कि हमारे पास बेशक 23 शहरों की टीमें होती हैं लेकिन शायद नुमाइंदगी 100 के करीब शहरों की होती है, क्योंकि आसपास के शहरों के इस्लामी भाई जहाँ करीब ऑडिशन होता है वहाँ आ जाते हैं और फिर वहाँ से सेलेक्ट तक आ जाते हैं। तो माशाल्लाह ये और वैरायटी है कि माशाल्लाह छोटे छोटे शहरों के इस्लामी भाई भी सेलेक्ट होते हैं। क्या फरमाते हैं आप? जी हुजूर, असल में कुछ इस्लामियों को ना तड़प बहुत ज़्यादा है। सही बात है, सारा साल पूछते हैं और ओपनली पूछते हैं कि सुभान भाई ये बताएं किस शहर से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा। तो हम कहते हैं हम क्या बताएं। कई ऐसे रावला कोट के आपको मिलेंगे जो लाहौर से रावला कोट भी गए थे, एक ठीक ठाक डिस्टेंस है। अब मेरा ख्याल है इसको हमें कोई किलोमीटर वाइज लॉक करना पड़ेगा कि इतने रेडियस के अंदर ऑडिशन दिया जा सकता है। और याद होगा लास्ट टाइम आपको पता है तीसरे ऑडिशन में पहुंचे थे इस्लामी जी, 6 ऑडिशन तक पहुंचे थे। लेकिन सही बात हुजूर ये है कि हमें ना मेरिट देखना होता है। मैं पूरी दुनिया को अर्ज करूं कि वहां पर आप जितने मर्जी शहरों में आ जाएं, सिर्फ निसाब नहीं देखा जाता, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इस वक्त की टीमें यहाँ बैठी हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो कैमरे को फेस करना भी एक चीज़ होती है, सब कुछ देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलें जनाब, ये अल्लाह की रहमत से टीमें हम तक पहुंच चुकी हैं। आइए नाजरीन, आज आपको बताते हैं पहला ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 है, तो आपको भी कुछ अपडेट्स देते हैं। अब नए हमारे सेगमेंट्स क्या हैं और किस तरह ये सिलसिला चलेगा, आइए देखते हैं जी। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है। बड़ा कमाल का ये नया सेगमेंट लाए हैं और मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट को ज़रूर मदनी चैनल के नाजरीन खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि इस्लाम के बुनियादी अकायद के मुतालिक इसमें सवालात होंगे। इसके शॉर्ट क्लिप्स भी आपको बड़े काम आएंगे। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को भी देखिएगा। अगला उसके बाद है हमारा गुलदस्ता हदीस, हदीस पाक कर शानदार अंदाज से इंशाल्लाह इस पर बात होगी इस प्रोग्राम में, इस सिलसिले में, इस सेगमेंट में। और अगला सेगमेंट है कुरान पाक में मज़कूर हैवानात का एक हैरत अंगेज़ इंशाल्लाह आप मंजर देखेंगे और उसके ज़रिए कुछ कुरान में किन जानवरों का जिक्र है और उनके बारे में कुछ मालूमात। और फिर आखिरी सेगमेंट होगा सफ़र है मगर अकेले, जिसमें तमाम इस्लामी भाइयों को अपना सफ़र खुद करना होगा, किसी से मशवरे की इजाज़त नहीं होगी। खानका शरीफ की टीम हम तक कैसे पहुंची, उसके ऑडिशन के भी कुछ मनाजिर आइए देखते हैं। ऑडिशन है जुनूबी पंजाब के शहर खानका शरीफ में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। इबादत करने वाला क़यामत में किस शक्ल में उठेगा? कुत्ते की शक्ल में। मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह, दरिया का जोश नाव ना बेड़ा ना ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर, भीड़ में हाथ से कम वक्त उफरे मुनकिर ये बड़ा जोश था सुबह आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, है बेकसी में तेरी मुजरिम को बारगाह
बारगाह अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। जाहिल को आलिम से बेहतर जानना कैसा? अगर इल्म दीन की तहकीर की वजह से है तो वो कुफर है। जनाब आइए शुरू करते हैं नाजरीन, पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। माशाअल्लाह, इल्म नूर है सेगमेंट में वाकई बहुत नूर मिलता है, क्योंकि जहाँ इल्म होता है वहाँ नूर होता है। और इस सेगमेंट में बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। निहायत गौर के साथ हमने इस प्रोग्राम में इस सेगमेंट में शामिल होना है। पहला सवाल सीजन 15 ज़हनी आजमाइश का पहला सवाल करने जा रहे हैं। वक्त होने के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना कैसा? हैदराबाद की टीम से सवाल है। जिनके पास वक्त होता है फिर भी इल्म दीन हासिल नहीं करते, उनके लिए ऐसा करना कैसा है? वक्त होने के बावजूद इल्म दीन हासिल न करना बड़ी बदबख्ती की अलामत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा हसरत उस शख्स को होगी कि जिसे इल्म हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल न किया, और जिस शख्स ने उसको भी हसरत सबसे ज़्यादा होगी कि जिस शख्स ने इल्म तो हासिल किया और उसके इल्म से लोगों ने तो नफ़ा उठाया लेकिन उसने खुद ने नफ़ा ना उठाया। जी जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये हदीस बहुत कुछ हमें सिखा रही है। सबसे ज़्यादा हसरत क़यामत के दिन उसको होगी जिसे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया, और उस शख्स को होगी जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उससे सुनकर नफ़ा उठाया मगर उसने ना उठाया, यानी अपने इल्म पर अमल ना किया। अल्लाह मुझे और आपको इल्म दीन हासिल करना भी नसीब फरमाए, उस इल्म पर अमल करना भी नसीब फरमाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जनाब पहले 2 नंबर सीजन 15 के हैदराबाद की टीम ने हासिल किए। अब बारी खानका शरीफ की है। वुजू, नमाज वगैरह में आने वाले वसवसों से बचने का क्या वजीफा है? बहुत सारे लोगों को नमाज में वुजू में वसवसे आते हैं। ये बहुत खूबसूरत वजीफा आपको मिलने जा रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, सूरत नास की तिलावत करना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वगैरह पढ़ना। ये वज़ाइफ हैं जी। 6 वज़ाइफ हैं जिसमें से 4 आपने दुरुस्त दिए। आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन मैं नाजरीन की तसल्ली के लिए मज़ीद दोहरा देता हूँ कि वो 6 तरीके क्या हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही कहे, सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास की पूरी सूरत की तिलावत कर ले, या फिर हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीमुन कहे। इससे फ़ौरन वसवसा दूर हो जाता है। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, क्या कद्दू शरीफ खाना सुन्नत है और क्या इसका जिक्र कुरान पाक में भी है? Knowledge is light. 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा, इस बात को याद रखिएगा। जी हाँ, कद्दू शरीफ खाना सुन्नत है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत उस-सॉफ़ात आयत नंबर 146 में सूरह यूनुस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए कद्दू शरीफ का दरख्त पैदा फरमाया। क्या बात है, कुरान में भी इसका जिक्र है और कद्दू शरीफ खाना सुन्नत भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, जिन्नों की तादाद मुसलमानों से कितनी ज्यादा है? जिन्नात की तादाद मुसलमानों से कितनी ज्यादा है? एक रिवायत के मुताबिक इंसानों से कितनी ज्यादा है? जी, एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात की तादाद इंसानों की तादाद से 9 गुना ज्यादा है। 9 टाइम्स ज्यादा है। यानी बताया जाता है कि 10 अगर अफराद हैं तो उनमें से 1 इंसान होता है तो 9 जिन्नात होते हैं। यानी तादाद के लिहाज से, ऐसा नहीं कि आप 10 में से या 9 जिन्नात बैठें, तादाद समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक इंसान के मुकाबले में 9 जिन्नात होते हैं। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, हमें नज़र नहीं आती मगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक वजीफ़ा हमने खानका शरीफ वालों से पूछा था, आइए एक वजीफ़ा हैदराबाद वालों से भी पूछ लेते हैं कि रोज़ी में बरकत का कोई वजीफ़ा बताएं।
ناظرین بہت سارے لوگ آج کل مہنگائی اور بہت سارے پرابلمز کا شکار ہیں، تو روزی میں برکت کا وظیفہ آج آپ کو ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش کے ذریعے علم دین بھی، وظائف بھی، صحت کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس انداز میں پڑھے کہ آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی ٹوپی وغیرہ بھی سر پر پہنی ہوئی نہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے روزی میں برکت ہوگی۔ کب پڑھنی ہے یہ؟ ہر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جی۔ یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار، یعنی 11 بار درود پاک پڑھیں، یا مسبب الاسباب پڑھیں، پھر 11 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اور یہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، اور ٹوپی وغیرہ بھی اتار دینی ہے، یعنی ننگے سر پڑھنا ہے۔ آسمان بھی کھلا ہو، یعنی آپ چھت پہ چلے جائیں، ایسی جگہ ہوں کہ اوپر آسمان ہو، بیچ میں کوئی دیوار یا چھت وغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ ہر روز عشاء کے بعد اس وظیفے کو مسلسل کرنے سے اللہ پاک نے چاہا تو روزی کھل جائے گی۔ اللہ تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد حلق کروانا کیسا ہے؟ خانقاہ شریف والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کروانا یہ واجب ہے۔ مرد کے لیے حلق کروانا افضل ہے۔ اگر تقصیر کروائے یعنی چوتھائی سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹوائے تو یہ بھی جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ مرد حلق کروائے، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ تقصیر کروائے۔ عورت حلق نہیں کروا سکتی۔ عورت کے لیے حلق کروانا جائز نہیں جی، اس کے لیے حلق کروانا حرام ہے۔ تو حج و عمرہ کرنے والے کے لیے حدود حرم میں ہی سر منڈوانا یعنی تقصیر کروانا، کم از کم چوتھائی سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹانا، حلق کروانا جس کو ہماری زبان میں ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، تو وہ کروانا بہت اچھا ہے، افضل ہے، ورنہ کم از کم چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوانا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کریں گے تو پھر احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آتے ہیں، اور تقصیر سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، مگر حلق کروانا افضل ہے۔ ہاں یاد رہے کہ خواتین کے لیے تقصیر ہی کروانا ہے، وہ حلق نہیں کروا سکتی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حلق کروانا نصیب فرمائے۔ میں مشورہ دیا کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا، ذرا بال چلے جائیں گے تو میں پتہ نہیں کیسا دکھوں گا، میں تو وہاں عمرہ کر کے واپس ہو جاؤں گا، کیا ہی اچھا ہو میرے بال ہی سارے وہاں رہ جائیں۔ تو حلق کروانا چاہیے، اور نبی پاک نے حلق کروانے والوں کو 1 سے زائد دعاؤں سے نوازا ہے، تو ہمیں حلق کروانے میں کہتے ہیں نا شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ برکت حاصل کرنی چاہیے۔ جناب حیدرآباد والوں کی باری ہے۔ موبائل فون میں اگر قرآن کریم ہو تو کیا اسے زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں جن کے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ موبائل فون میں قرآن کریم کی فائل انسٹال ہے یا اپلیکیشن انسٹال ہے اور اسکرین پر نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب اسے نیچے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو پھر تو حافظ قرآن جو ہے اس کے سینے میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، اور عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے، تو اسے بھی زمین پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن کریم موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، آپ نے اوپن کیا ہوا ہے، تو اس کا حکم اب الگ ہوگا، اس کے ادب کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اسے نیچے بھی نہیں رکھا جائے گا، اور بے وضو سے ٹچ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیا خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ پھر تو حافظ قرآن کو بھی زمین پہ نہیں بٹھانا چاہیے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ تو جناب اگر موبائل میں قرآن انسٹال ہے اور اسکرین پر قرآن نظر نہیں آ رہا تو پھر موبائل زمین پر رکھنے یا جیب وغیرہ رکھنے میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں اسکرین پر موبائل قرآن پاک آن ہے تو اب اس کا ادب کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ عالم کی زینت کیا ہے؟ سوال ہے خانقاہ شریف والوں سے، عالم کی زینت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کا پردہ ہے۔ کیا بات ہے جناب، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاموشی عالم کی زینت ہے، جاہل کا پردہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خاموش رہنے والے بنے۔ بہت زیادہ کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں، زیادہ گفتگو کرنا بعض اوقات آپ کے وقار کو کم کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔
चार चार सवाल, सारे सही जवाब। अब आखिरी सवाल वो है जिसमें शायद थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, क्योंकि इस सवाल का इन्हें कोई सिलेबस नहीं दिया गया था, मगर इन्हें ऑप्शन जरूर दिए जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम हफ्ते में किस दिन मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते? हफ्ते के दिन, पीर के दिन या जुमा के दिन? सुभान अल्लाह। कुबा शरीफ नबी पाक हफ्ते में किस दिन तशरीफ ले जाते? नाजरीन से पूछ सकते हैं? अभी तक तो हमने ये ऑप्शन खोला नहीं है, मजलिस से मशवरा भी नहीं हुआ था। अभी आप ही जवाब दीजिए, हफ्ते के दिन, पीर के दिन या जुमा के दिन? है बड़ा प्यारा सवाल ये। टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से जवाब दे दे, मैं मान लूंगा। हफ्ता। हफ्ते के दिन। हालांकि पीर का दिन मेरे आका की विलादत का मुबारक दिन है, जुमे का दिन अफजल दिन है, एक नेकी 70 नेकी के बराबर है। हफ्ता क्यों कहा आपने? चेंज करना है? एक बोलना ही था। एक बोलना ही था, इसलिए कह दिया। बाज़ औक़ात एक ही बोलना था, वही सही निकल जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मजे की बात बताऊं, अल्लाह आपको दुआ देता हूं, आपको, आप मुझे दुआ दे दें, अल्लाह हम सबको मदीने की बार बार हाजिरियत। आज भी हफ्ते के दिन आप मस्जिद कुबा जाएं, आम दिनों में भी जाएं और हफ्ते वाले दिन जाएं, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अहले मदीना आज भी नबी पाक की सदा को अदा करते हैं, और मस्जिद कुबा के बाहर लिखा हुआ भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में हफ्ते वाले दिन कभी पैदल कभी सवारी पर यहाँ आकर नमाज अदा फरमाते, नफल अदा फरमाते। अल्लाह अकबर। मस्जिद कुबा की हाज़िरी किस कदर शानदार मस्जिद है कि इस मस्जिद में जो कोई शख्स जाकर 2 रकत नफल अदा करे उसे उम्रे का सवाब मिलता है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब बारी है खानका शरीफ वालों की। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम शोहदाए ओहद की मुकद्दस कब्रों पर कब तशरीफ ले जाते? वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन ऑफ मदीना पाक। सुभान अल्लाह। इसमें हर साल के दरमियान में, या हर साल के शुरू में, या हर साल के आखिर में? कब जाते थे नबी पाक शोहदाए ओहद की बारगाह में, शोहदाए ओहद पर, उनकी कब्रों पर करम फरमाने के लिए? जल्दी कीजिएगा। हर साल के दरमियान में तशरीफ़ लाते थे। आपने कहा हर साल के दरमियान में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक हर साल के शुरू में शोहदाए ओहद की बारगाह में, शोहदाए ओहद के पास करम फरमाने के लिए जाया करते। जनाब गलती हो गई है, मगर इसमें वाकई आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका ये एक ऑप्शन वाला सवाल था और लकी उन्होंने जवाब सही दे दिया। लेकिन अभी मुकाबला बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। नाज़रीन, ये सेगमेंट तो कंप्लीट हुआ। आइए अब यहाँ हाजरीन से भी कोई सवाल करें। कौन कौन जवाब देगा? देखें सोबान भाई कौन सा सवाल लाए हैं और कौन सा तोहफा लाए हैं। सीजन 15 का पहला हाजरीन का सवाल और पहला तोहफा। ओए होए होए, तोहफा तो ये आप बताएं हुजूरी क्या है? हाँ, ये तो देखें, वैसे तो हर तस्बीह बड़ी प्यारी है क्योंकि उस तस्बीह से अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, मगर ये तस्बीह बड़ी स्पेशल है। यकीन माने बड़ी स्पेशल है। पता है क्यों स्पेशल है? ये कहाँ से आई है? ये बगदाद से आई है। अच्छा, एक तो इसमें बगदादी रंग भी है, मगर इसकी एक और स्पेशलिटी बताऊं कि ये गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला की मुबारक मज़ार की जाली से टच हुई तस्बीह है। हाय हाय, मुरीद के लिए इससे बड़ी कोई सआदत है कि पीराने पीर के रोज़े से टच होकर तस्बीह मुझे मिल जाए। क्या पता इस तस्बीह को पढ़ते पढ़ते ही गौस पाक का दीदार भी नसीब हो जाए। तो चलें भाई, अब ये सिर्फ सवाल पर तस्बीह लेंगे या कोई मदनी फीस भी? वैसे कम से कम 3 दिन मदनी काफिले की तारीख भी साथ देनी चाहिए। है इतनी प्यारी तस्बीह तो कमाल है ना। चलें सवाल करें। 2 चीजें होगी ना, एक रुकन शुरा ने फरमाया सवाल का जवाब और साथ 3 दिन का काफिला। सही है। सवाल ये है, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में इसमें जलालत लफ्ज अल्लाह आया है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। शाह साहब को दीजिएगा माइक जी, अपना नाम बताएं पहले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन हतारी है, जामियातुल मदीना बकर। अरे वाह। सूरतुल मुजादला
जो 28वें पारे की पहली सूरत है। हर आयत में लफ्ज अल्लाह का लफ्ज आया। जी हाँ। जी बताइए जी, जवाब दुरुस्त है इनका। माशाल्लाह, क्या बात है। 3 दिन के काफले की भी नियत करें बकर से, माशाल्लाह। तारीख देंगे अगले महीने कह रहे हैं दिसंबर में। तस्बीह और ये नजर की हिफाजत की फजीलत, सुभान अल्लाह। खूबसूरत रिसाला है मकतबतुल मदीना का, ये भी इनको ये भी बहुत ज़रूरत है आजकल भाई इस रिसाले की, नज़र की हिफाजत। लोगों को बहुत ज़्यादा नज़रें लग जाती हैं। मेरा ख्याल है एक और सवाल कर लें, एक और तस्बीह भी दे दें बापू। अब आपने जब से तस्बीह दिखाई है तो लोगों की पीछे से लेते। ये बताइए, मदनी चैनल का आगाज किस इस्लामी तारीख को हुआ? मदनी चैनल का आगाज किस इस्लामी तारीख को हुआ? आप बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले मदनी काफले की भी नियत फरमाएं। इंशाल्लाह 2 माह के अंदर 3 दिन का काफला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। मोहम्मद आसिफ अतारी जिला जंग से हाजिर हुआ। माशाल्लाह। 9 रमजान मुबारक। एक दिन मेरा ख्याल है आगे पीछे कर दिया उन्होंने। जी। 10 रमजान मुबारक। जय साहब। जी क्या फरमाएंगे? 8 तो नहीं था, सोच लो। 10 था, हाँ 10 रमजान मुबारक को। 10 रमजान मुबारक, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी, आपके लिए भी ये बगदादी रंग वाली तस्बीह जालियों। अच्छा, अगर ये तस्बीह वाले इतनी मुबारक तस्बीह भी ले रहे हैं तो ये भी अगर नियत हो जाए कि कम से कम रोजाना 313 बार दुरूद पाक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको तोहफ़ मिलते रहेंगे, सवालात होते रहेंगे। नाज़रीन आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, इल्म नूर है, पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। 10 नंबर है हैदराबाद, 8 नंबर है खानका शरीफ के। अब चलते हैं बहुत ही प्यारा सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। हमारे नाजरीन को एक और दिलचस्पी भी रहती है, मैसेजेस भी आते हैं कि भाई इस बार ज़हनी आजमाइश का कलाम कैसा है। इस पर हर साल हम एक कलाम भी रिलीज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में सीज़न 15 का कलाम रिकॉर्ड तो हो गया है, मगर उसकी कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो अगले चंद दिनों बाद आप उसको देख सकेंगे। अगर कोई एक झलक हमारे मजलिस के स्लैब में सुनाना चाहें तो ऑडियो की सूरत में हमारे नाजरीन को सुना दें। अच्छा, सारा कुछ नहीं सुनाना चाह रहे, इंशाल्लाह अनकरीब आप सुनेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं इश्क के बोल सेगमेंट। इस बार कुछ तब्दीली जरूर है, कुछ अशार आपसे सुने भी जाएंगे, कुछ दिखाए भी जाएंगे। पहला सवाल करेंगे हैदराबाद वालों से। फकत ये आरजू है नज़आ में मरकद में महशर में, फकत ये आरजू है नज़आ में मरकद में महशर में। फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरकद में महशर में, कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरकद में महशर में, अब सवाल है, न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को। न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल। क्या बात है, न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को, न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न भूले न भूलोगे कयामत तक गुलामों को, न भूले और
قربان یا رسول اللہ. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جواب درست دے دیا ہے. سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث اعظم کا. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے. بلی لاتوں غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث اعظم. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. ہائے ہائے ہائے. جلدی کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں سنا دیں؟ چلیں بھائی، شعر کون پورا کرے گا؟ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. ذاکر اتاری عرض کر رہا ہوں. کہاں سے آئے آپ؟ کراچی سے. جی. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. ہائے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. بالکل جواب بھی درست دے دیا اور پڑھا بھی بہت پیارا آپ نے. ان کو تحفہ پیش کریں جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. جواب درست دے. 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. آپ کو پتہ ہے جنت البقیع کہاں ہے؟ اے بالکل نبی پاک کے قدموں میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں. جس کو مدینے میں مرنا نصیب ہو گیا نا اور جنت البقیع مل گئی، خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت ملے اور بندہ آقا کے قدموں کے قریب بس جائے. اب قیامت تک خیر ہی خیر ہے. اور خود نبی پاک فرماتے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال تھوڑا سا یونیک ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ خدائی کے بخشش میں الف سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر کوئی الف سے شعر بھی سنائیں گے. خدائی کی بخشش میں لفظ الف سے 15 کلام آتے ہیں. 15 کلام آتے ہیں. کوئی ایک شعر بھی سنا دیں جو الف سے آتا ہو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا. الف سے 15 اشعار آتے ہیں. 15 کلام الف سے شروع ہوتے ہیں خدائی کے بخشش میں. جواب درست دے دیا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے
آپ بتائیں گے جیم سے، لفظ جیم سے ہدائی کے بخشش میں کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ جیم سے 2 کلام شروع ہوتے ہیں. کوئی ایک شعر بھی سنائیے جی. کوئی سے شعر سناتے ہیں چاہے، مطلب کلام کا شروع نہ ہو یا آخر میں. اگر شروع والا ہی سنا دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ جیم سے کوئی بھی شعر سنا دے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اے رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اب جناب آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ شعر درست ہے کہ نہیں. اگر درست ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر آپ نے درست کر کے بتانا ہے. دکھائیے اسکرین پر شعر. یوں تو کثرت سے نام لیکن کر لو وظیفہ نام محمد. کیا یہ درست ہے یا آپ کچھ اور درست کرنا چاہیں؟ جلدی کیجئے گا. درست نہیں ہے. درست بتائیے جناب. یہ صرف نہیں بتانا تھا، آپ کو درست بھی بتانا تھا. جلدی کیجئے. یہ پہلا سلسلہ ہے تو میں تھوڑی سی رعایت برت رہا ہوں. سیکنڈ ختم ہونے پر پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. چاہے جی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ بتائیے، اسکرین ہی بتائے گی جناب. اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں چلیے، یہ میری تھوڑی مسٹیک ہو گئی. پہلے والے مصرے کے ساتھ آپ نے دوسرا مصرع درست کرنا ہے. چلے پھر 25 سیکنڈ دے دیں ان کو. یعنی ہیں یوں تو کثرت سے نام لیکن، اس کے بعد والا دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. اگر یہ درست نہیں ہے تو اب آپ صحیح والا بتائیں. جی. ہیں یوں تو نام کثرت سے لیکن سب ناموں سے ہے پیارا نام محمد. جی بتائیے اسکرین پر کیا درست ہے؟ سب سے ہے پیارا نام محمد. جواب درست مان لیتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن، یوں تو کثرت سے نام لیکن، سب سے ہے پیارا نام محمد. سب سے ہے پیارا نام محمد. جناب اب آپ کو شعر دکھایا جائے گا، اور یاد رہے کہ پہلا مصرع تو ہم نے درست ہی لکھا ہے. دوسرا مصرع درست ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی درست بھی آ جائے. آپ نے یہ چیک کرنا ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نے درست صحیح والا مصرع پڑھنا ہے. جی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی سب سے ہے پیارا نام محمد. غلط ہے. صحیح ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. کر لو وظیفہ نام محمد. جواب درست دے دیا ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد. کر لو وظیفہ نام محمد. سبحان اللہ. اسی کلام کا ایک شعر آپ میں سے دیکھیں کون سناتا ہے. اپنے جمیل رضوی کے قربان جاؤں. آپ بتائیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. اپنے رضا کے قربان جاؤں. جی. جواد احمد اتاری، فیضان مدینہ گمبر سے. جی. اپنے رضا کے قربان جاؤں. واہ واہ واہ. اپنے رضا کے
جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا. واہ بھائی واہ، آپ کی تو آواز بھی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ. چلیں، خوبصورت کتاب ان کو دی جا رہی ہے، گفتگو کے آداب، ماشاءاللہ، فضول باتوں سے بچنے کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور سلسلے کو لے کر بھی آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ مدنی چینل کا سالانہ سلسلہ ذہنی آزمائش تشریف لا چکا ہے. میرا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کے اس سلسلے میں کیا جذبات ہیں، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس بارے میں بتائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ یقیناً خوشی ہوتی ہے، ہم اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا میں ضرور اس سلسلے کی وجہ سے پیک ہو جاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اسے دیکھا جاتا ہے اور بہت اسے پسند بھی کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے، خود مدنی چینل کے حوالے سے ہماری ویورشپ بڑھتی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کے اور بھی فوائد حاصل ہوں. تو دعا بھی کریں اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب، آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 15 شروع ہونے کی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ پورا سال انتظار رہا ہمیں، آخرکار انتظار کی گھڑیاں پوری ہو گئی اور ذہنی آزمائش سیزن 15 شروع ہو گیا. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سیٹ بھی بہت اچھا ہے اور جنہوں نے یہ سیٹ بنایا ہے، جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ ملایا ہے، اللہ پاک ان سب کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو، آپ کو اور ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کی ہمیں حاجت بھی ہے اور آپ کی دعاؤں ہمیں دعائیں بڑی انرجی بھی دیتی ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام زہر رضا تاری ہے، میں کانا لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کے پروگرام کا سیٹ بہت بہت پیارا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کہ ذہنی آزمائش شروع ہو گئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی یہ بچے خوش بھی بہت ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل انشاءاللہ ذہنی آزمائش 9 بجے نہیں 8:30 بجے کل سے براہ راست شروع ہوگا، تو سب نے آن ٹائم رہنا ہے. اسٹوڈیو میں آنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا. آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے. انشاءاللہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے جس میں عقائد اسلام کے بارے میں، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں ہم جانیں گے اور بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوں گے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا آیا کہ جناب بہت ساری عجیب و غریب باتیں لوگ سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کنفیوز بھی ہوتے ہیں. ہمارے عقائد مضبوط ہونے چاہیے، کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے عقائد کیا ہیں. آئیے جناب آج جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا دونوں ٹیموں سے سوال ہوں گے، وہ ذات باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک ایمان رکھنے والے ایک مسلمان کے کیا عقائد ہیں اس کو جانیں گے. پہلا سوال کریں گے حیدرآباد والوں سے، ذات باری تعالیٰ کا مختصر تعارف بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. اس کا وجود وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال. مزید بھی کچھ بتائیں گے؟ اور عدم محال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال، قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. ازلی کے معنی بھی یہی ہیں، باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا اللہ پاک کی ذات کا ادراک ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً تو ممکن نہیں. ہر وہ چیز جس کو عقل سمجھ سکتی ہے اس کو محیط ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اجمالاً، پھر ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا اللہ کریم کی صفات بھی قدیم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح اللہ پاک کی ذات قدیم اور ازلی ہے، اس طرح ازلی اور ابدی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم اور ازلی اور ابدی ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں. اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے شارٹ کلپس بھی جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تاکہ جو بیسکس ہیں، ہمارے عقائد ہیں، بلیوز ہیں، وہ ہم مضبوط کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، چاہے تو لکھ لیں، اور یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 22 نمبر حیدرآباد کے ہیں، 22 ہی نمبر خانقاہ کے ہیں. مقابلہ پہلے کچھ آگے پیچھے ہوا مگر پھر برابر ہو گیا. آگے بڑھتے رہیں گے، ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ذہنی آزمائش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جلدی کا ٹائم رکھ کے بہت اچھا کیا ہے. ہم جو اسکول جاتے مدرسے جاتے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور ذہنی آزمائش واپس آ گیا ہے تو اس سے دل کو بہت سکون ملا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، آپ کی دعاؤں کا. ناظرین بہت خوبصورت گلدستہ، لوگ عموماً پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. ذہنی آزمائش آپ کے لیے حدیثوں کا گلدستہ لایا ہے. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ گلدستہ حدیث. جی گلدستہ حدیث میں ہم نے اسکرین پر کچھ دکھانا ہے ہماری ٹیمز کو، اور اس حدیث سے متعلق ہم نے کچھ پوچھنا ہے. ناظرین سے میں ایک مشورہ دوں گا، چاہیں تو اسکرین کی پکچرز لے لیا کیجئے گا، آپ کے پاس بہت پیاری پیاری حدیثیں جمع ہو جائیں گی. آئیے دیکھتے ہیں گلدستہ حدیث میں آج کون سی حدیث ہے، اور اس کے متعلق پھر ہم ان سے کچھ پوچھیں گے. جی مسجد الفردوس کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3814. ہاں جناب یہ حدیث آپ نے عربی متن اس کا سنانا ہے اور اس کا ترجمہ سنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما. غفر له ذنوب 80 عاما. جی ترجمہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ پل صراط پر نور ہوگا، اور جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھ لے. جواب درست دے دیا ہے جناب. حدیث بھی سن لی، فضیلت بھی پتہ چل گئی. آئیے اس حدیث کی کچھ شرح بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کی شرح بھی موجود ہے تاکہ مزید اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا ثواب پل صراط پر ایسا نور ہوگا جو اس پر چلنے والے کے لیے چمکے گا اور روشن ہوگا. یہاں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے. سبحان اللہ. تو گویا عربی متن بھی ہم نے سن لیا، ترجمہ بھی سن لیا، شرح حدیث بھی جان لی. سبحان اللہ. تو امید کرتا ہوں کہ اچھا ایک اور کام بھی اب آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے ناظرین نے روزانہ 4 حدیثیں ہم سنیں گے، تو کسی بھی ایک حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور پھر ہمیں بھجوانا ہے. آپ کی ویڈیو یا آڈیو اپنے بچوں کی بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی بھی بھیج سکتے ہیں. اور ہمیں ایک اور سیگمنٹ بھی آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، بچوں کا ذہنی آزمائش. اور اس سیگمنٹ کا انداز یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ذہنی آزمائش کا ڈیمو کرنا چاہتے ہیں، گھر میں سوال جواب کرتے ہیں یا گھر میں ایک چھوٹا سا مقابلہ کرتے ہیں، تو اس کی ویڈیو بھی ہمیں آپ بھیجیں تو انشاءاللہ ممکن ہوگا تو ہم اپنے پروگرام میں اس کو بھی آن ایئر کریں گے. جناب اب باری ہے خانقاہ شریف والوں کی. آئیے جناب بتائیے کون سی حدیث اور کیا انہوں نے بتانا ہے.
जी जनाब, ये अरबी मतन तो आ गया है, आपने इसका तर्जमा भी बताना है और इसका हवाला भी, रेफरेंस भी बताना है कि ये हदीस कहां पर किस किताब में मौजूद है। बड़ी बड़ी मशहूर हदीस पाक है और बड़ी कमाल की हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी जान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 2 में यह हदीस मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद, ये तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, हदीस भी सही बता दी। जिल्द कौन सी है? 4। न 2 में है न 4 में है। चलिए, मुस्नद इमाम अहमद आपने कह दिया तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास लिखा है उसके मुताबिक 6ठी जिल्द में है और हदीस नंबर 18069 है। ऐसा ही है जी, ठीक है। तो बहरहाल जवाब आपका हम दुरुस्त मान लेते हैं। आइए नाज़रीन, इसकी शरह सुनते हैं। कितनी खूबसूरत हदीस पाक है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब यानी प्यारा रखने का मतलब यह है कि दीन इस्लाम को माना जाए, आपकी सुन्नतों की पैरवी की जाए, आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की जाए और हर चीज़ यानी अपनी ज़ात, अपनी औलाद और अपने माँ बाप, अपने अजीज़ और रिश्तेदार और अपने मालो असबाब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशी को मुकद्दम रखे। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया। अल्लाह इस हदीस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब, अब बारी हैदराबाद वालों की है। बताइए हदीस पाक में क्या बताना है। तर्जमा आ गया जनाब। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और क़यामत पर जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। इसकी अरबी मतन सुनाइए और हवाला भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। ये बुखारी जिल्द 2 में, बुखारी जिल्द 4 चौथी जिल्द में है। हदीस नंबर 6018। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक का क्या खूबसूरत तर्जुमा है कि अल्लाह और क़यामत पर जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। हदीस की शरह सुन लीजिए। हदीस पाक का मतलब यह है कि जब कोई बात करना चाहे तो गौर कर ले कि वो बाइस सवाब है या नहीं। अगर बाइस सवाब हो तो बात करे, अगर बाइस सवाब ना हो तो बात ना करे। और अगर वो बात ना बाइस सवाब हो और ना बाइस गुनाह बल्कि मुबाह हो तो इससे भी इसलिए बचे कि कहीं मुबाह बातें करने की आदत नाजायज़ और हराम बोलने तक ना ले जाए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जब कोई बोलना चाहे तो बोलने से पहले सोच ले। अगर उस पर वाज़े हो कि बोलना उसके लिए नुकसानदेह नहीं तो बोले, और अगर बोलने का नुकसान उस पर वाज़े हो या उस बात के नुकसानदेह होने में शक हो तो मत बोले। क्या बात है। अमीर अहले सुन्नत ने एक नारे के जरिए ये कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया है कि पहले तोलो बाद में बोलो। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि पहले सोच लेना कि बोलना ही नहीं बोलना, बोल के गुनाहगार तो नहीं होंगे, शर्मिंदा तो नहीं होंगे। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चौथी हदीस। और आइए खानका शरीफ वालों को पूछते हैं कि कौन सी हदीस है। बताइए जनाब। जी, शरा हदीस आ गई है। मछली की कलेजी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा लजीज होता है। इस मछली के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही मछली है जिस पर जमीन ठहरी हुई है। हाँ, अब हदीस सुनानी है और हदीस का तर्जमा भी सुनाना है और हदीस की चले वो रेफरेंस भी बताना है। जी, अरबी हदीस सुनाइए पहले। वअम्मा अव्वलुत ताअमु याकुलुहु अहलुल जन्नति फज़ियादतु काबिदुल हूती। जन्नती जन्नत में सबसे पहले मछली की कलेजी का किनारा खाएंगे। ये बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 605 पर यह हदीस मौजूद है। जी, व अम्मा अव्वलु ताअमि याकुलुहु अहलुल जन्नति फज़ियादतु कबिदिल हूत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिला अता फरमाए और वो पहला जो खाना होगा उसमें हम भी शामिल हो जाएं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3938। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये है जनाब, ये गुलदस्ता हदीस बहुत कुछ सिखाता जाएगा, सीखते भी जाएंगे और बरकतें भी लेते जाएंगे। क्या खूबसूरत बात शायर ने कही ना, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें, चाँद जिन से
انشاءاللہ. ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ مزید نعت خوانی بھی کرنی ہے, نیک اعمال کا جائزہ بھی لینا ہے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, آپ کالز کرتے رہیے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. نعت خواں اسلام پہ بھی تشریف لے آئیں. پہلے نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس نیک اعمال کا رسالہ موجود ہے تو وہ نکال لیجئے, ورنہ اس کی بھی اپلیکیشن دعوت اسلامی نے بنا دی ہے, تو روزانہ نیک اعمال کے اپلیکیشن نکال کر اس میں اپنے پورے دن کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. جی انشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے کالز وغیرہ لیے ہیں, فیس بک پر بھی بہت سارے SMS آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مبارکباد آپ کو دی جا رہی ہے. اور ایک اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ میلاد رضا بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کام ہمارے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے, اور اللہ پاک آپ کو اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے ماشاءاللہ. اسی طرح کے بہت ہی اچھے اچھے تاثرات ہیں فیس بک پر بھی. اللہ کریم ہمیں بھی مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آئیے مدنی چلیں گے ناظرین, آج کی فکر مدینہ کرتے ہیں, نیک اعمال کا جائزہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیک اعمال کا جائزہ کر لیجئے. نمبر 1, اچھی اچھی نیتیں کیں, 5 نمازیں با جماعت ادا کیں, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورۃ الاخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کے بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغہ میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کیں, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق چاش پڑھیں, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کیں, جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہہ لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی جناب کمپلیٹ ہوئی. اب آئیے انشاءاللہ نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح, آقا ہمیں بلائیں گے
सल्ली अला मुहम्मदिल। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाऊं, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। मैं क्या बताऊं, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना, एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। नबी की यादें लब पर, नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाज़ी उनकी करम नवाज़ी, जिस दिन हुए रवाना, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। बस मेरा मौला मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है। मैं क्या बताऊं, और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाले, दुनिया वाले, दुनिया वाले, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले, ये दुनिया वाले
ہو سکتا ہے بہت سارے دکھی مجھے سن رہے ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں، قرضے میں ہوں، مدینے جانے کے لیے بے قرار ہوں. دنیا والوں سے نہ کہا کریں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. آج کل تو لوگ کسی کو پرابلم بتائیں نا، وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے سامنے تو کہتے ہیں ہم آپ کا کام کریں گے، بعد میں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ آیا تھا میرے پاس، اپنا یہ مسئلہ لے کر آیا. آج لوگ انجوائے کرتے ہیں دوسروں کی تکلیف میں. مدد کون کرتا ہے؟ ارے ہے نا آقا. آؤ اگر تکلیف میں ہو تو مدینے والے آقا کی طرف لو لگائیں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ. دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے آقا زخمی دل کی دوا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ایک مدینہ منورہ میں ایک شخص نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، بڑے غریبوں والے کپڑے پہنے تھے، پیروں میں چپل بھی نہیں تھے. محسوس ہوا کہ کوئی غریب بچہ ہے. پتہ چلا کہ اس کے والدین بھی نہیں ہیں. اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس بچے کو ہم گود لے لیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے وطن، اچھی پرورش کریں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے. مدینے میں بچہ ہمیں ملا ہے اور اچھا ہو جائے گا. بچے سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری تعلیم کا بھی انتظام کریں گے، تمہارے بہت اچھے معاملات کر دیں گے. وہ بچہ جس کے پاس نہ لباس درست تھا، نہ کپڑے پہننے کو تھے اچھے، نہ چپل پیروں میں تھے، وہ بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا آپ کے وطن میں یہ بھی موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس مدینہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس مدینہ نہیں ہے. وہ گویا بچہ بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ مدینہ ایک ہی ہے ناظرین. وہ برکتیں، وہ رونقیں، وہ سکون دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں نا، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور ایک بار تو ایسی حاضری ہو کہ بس جائیں تو پھر واپس نہ آئیں، پھر وہیں آقا کے قدموں میں رہ جائیں. اللہ کرے کہ جنت البقیع ہم سب کا مدفن بن جائے. انشاءاللہ
मज़ीद सिलसिलों में भी ज़िक्र मदीना होता रहेगा। अल्लाह करे कि आंखें नम रहें और इन नम आँखों की आरजुएँ कबूल हो जाएं। न जाने किसकी आमीन के सदके, किसकी सिसकी, किसके आंसुओं के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मार है, दरमियान में तुलू हुआ है। मैं एड को हमेशा देखूंगा अब्दुल कबीर अतारी रायवन मुस्तफाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश हर साल हम अपनी फैमिली के साथ बड़े शौक से सुनते हैं। इस साल भी इंशाअल्लाह ज़ोल नियत है कि मुकम्मल सिलसिले सुनेंगे भी और समझेंगे भी, अमल भी करेंगे। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत जिंदा व इस्लामी की खैर फरमाए। ज़हनी आजमाइश का सिलसिला शुरू होते ही पूरी हमारी फैमिली के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गई। यूँ समझ लीजिए ईद का समा हो गया। बच्चे दिन से कह रहे थे कि आज ज़हनी आजमाइश का पहला प्रोग्राम है, सब ने मिल के देखना है। अल्लाह सलामत रखे ज़हनी आजमाइश की टीम को, मदनी चैनल को, बिलखुसूस हमारे रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई की मुस्कुराहटें अल्लाह पाक शादोबाद रखे। वेल डन मदनी चैनल, वेल डन ज़हनी आजमाइश टीम। माशाअल्लाह मदनी चैनल की बहुत ही प्यारी रौनक ज़हनी आजमाइश दोबारा आ चुका है और बहुत ही प्यारा सेटअप लगाया गया है। अल्लाह पाक सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू होने जा रहा है। क्या बात है। अल्लाह पाक मदनी चैनल वालों को और दावत इस्लामी वालों को सलामत रखे। आमीन। मेरा नाम गुलाम इलियास और मैं जिला पाकपतन शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है। प्रोग्राम का हमें सारा साल ही इंतजार रहता है। अल्लाह पाक आपको और मजलिस को शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह आपका ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आप सबको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मेरे लिए भी, मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, एक बार फिर रब्बुल आखिर शरीफ में तेरी आज़माइश सीज़न 15 आ रहा है माशाअल्लाह, और हम सब बहुत खुशी के साथ देख रहे हैं। अल्लाह पाक तेरी आज़माइश को खूब तरक्की अता फरमाए, इल्म की शमाअत चलाने और दूसरों को खुश करने के लिए आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा शराजी है, मैं बिहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश सिलसिला बहुत लोगों का इंतजार था, फिर दोबारा आ चुका है। मैं हूँ सभी शेखुपुरा से। मेरे प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा लगता है और मेरे घर वाले भी इससे ज्यादा शौक से देखते हैं और आपके प्रोग्राम का स्टेज भी बहुत ही प्यारा है। अल्लाह आपके प्रोग्राम में मजीद बरकतें अता फरमाए। ज़हनी आजमाइश की आमद। मरहबा मरहबा। मेरा नाम मरियम है, मैं शकरगढ़ से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। आज मैं खानका की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद रमजान का नाम, बच्चे का बीमार काफी रहते हैं इसलिए दुआ करवानी थी। अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को कहना दुआ कर दें बच्चे की। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कॉल्स का एक अंबार मुझे बताया जा रहा है, तो हमारी टीम ने कहा कि कुछ ज़्यादा कॉल्स हम चला देते हैं, कुछ कॉल्स ना चल सकें तो नाराज़ भी मत होइएगा। मगर आपके जज्बात सुनकर, आपकी खुशी को देखकर यकीनन हमें भी खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब इतनी प्रिपरेशन के साथ, इतनी तैयारियों के साथ आप इस प्रोग्राम को देखने की नीयत कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी नीयत करते हैं कि एक अच्छी तैयारी के साथ और एक अच्छे अंदाज से आप तक ये सिलसिला पहुँचाएँगे। बच्चों का ज़हनी आजमाइश जो नया सेगमेंट हम लाए हैं, उसके लिए 0313 स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे हैं 12000026। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। अपने घर में एक छोटा सा ज़हनी आजमाइश का अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं या आपके घर में कोई बच्चा है या बच्ची है 5-6 साल से छोटी उम्र है, तो वो अगर ज़हनी आजमाइश का कोई अंदाज़ अपनाते हैं और आपको लगता है कि वो दिलचस्प है, तो आप हमें भेजें, तो इंशाअल्लाह इसको भी हम अल्लाह ने चाहा तो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए नाज़रीन, मकतबतुल मदीना की तरफ से एक ऐलान है, गालिबन सोबान भाई या यूसुफ शाह सब करेंगे। चलिए, आप जब वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह जाके ऐलान करेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें इंशाल्लाह, ताकि हम प्रोग्राम को लेकर आगे चले। हमें अपना स्कोर बोर्ड जरा दोबारा दिखाइएगा। माशाअल्लाह जनाब, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा स्कोर बोर्ड बता रहा है हमें 26-26। क्या बात है, दोनों टीमें
साथ साथ ही चल रही हैं, मगर क्या आखिर तक साथ रहेंगी या कुछ साथ छोड़ देंगी? अच्छा जनाब, आइए पहले चलते हैं सुभान भाई की तरफ। क्या अनाउंसमेंट है? मकतबतुल मदीना वालों ने आपके लिए खुशखबरी भेजी है, ज़हनी आजमाइश देखने वालों के लिए कोई ऑफर भेजी है, कोई लगता है इनाम भेजा है। बताइए सुभान भाई क्या तैयारी? जी हुजूर, ये जैसे अभी तासुरात भी आ रहे थे हमारे कि ईद का समा है, तो दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स भी माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के इस प्रोग्राम के अंदर प्रमोशंस भेज रहे हैं। दावत इस्लामी का बड़ा ही ज़बरदस्त शोबा है, मकतबतुल मदीना पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बुक्स होती हैं। तो ये बुक ऑफ द वीक के हिसाब से हम चलेंगे। अभी 12 नवंबर से 25 नवंबर तक ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 में मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है। 12 नवंबर से 25 नवंबर तक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की लिखी गई किताब गुफ्तगू के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, इस पर है जनाब 18% डिस्काउंट, यानी 18% बचत। और यही नहीं बल्कि खरीदारों के नाम सीजन 15 के आखिर में होने वाली कुरान अंदाजी में भी शामिल किए जाएंगे, जिसमें से 12 लोगों के नाम निकाले जाएंगे जिन्हें किताब तोहफे में पेश की जाएगी। और वो किताब जो तोहफे में पेश की जाएगी, जरा सुनिए उसके अंदर क्या होगा। जी हाँ, उसमें अमीर अहले सुन्नत के हाथ की लिखी हुई एक तहरीर और आपके दस्तखत भी होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी करें, मकतबतुल मदीना से ये किताब हदियतन तलब फरमाए। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, चाहे स्टूडेंट्स हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ट्रेड हो, जो भी हो, सब चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के नए नए आर्ट, नए नए लहजे, नया नया अंदाज सीखें। तो अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ये किताब गुफ्तगू के आदाब, फजूल बातों से बचने की फजीलत, जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं 80% गुनाह ज़बान से होते हैं, हज़रत लुक़मान हकीम के बारे में मालूमात, बोलने से पहले तोलने का तरीका, फजूल बातों से बचने के 25 वाक़यात। तो ये किताब खरीदिए, कुरान अंदाजी में शामिल हो जाइए और फिर इंतज़ार कीजिए उस किताब का जिस पे अमीर अहले सुन्नत की तहरीर भी है और आपके मुबारक दस्तखत भी हैं। ऐसे ये कमाल की बुक है, मैंने इस किताब को पढ़ा है, कमाल की किताब है, पढ़ें तो अमेजिंग बुक है। और इस किताब के अंदर इतने आपको मौज़ूआत, बयानात के लिए भी, मुबल्लिगीन के लिए भी, उलमा के लिए भी, जो आइम्मा हैं उनके लिए भी इसमें ख़जाना है। तो ज़रूर हासिल करें और उसकी बरकतें लूटें। नाज़रीन, चलते हैं अब अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, और वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, बच्चों के लिए इसमें बहुत दिलचस्पी है, बड़ों के लिए भी है। पहले तो हमें ये पता चलेगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में किन हैवानात का जिक्र है, और फिर इंशाल्लाह उन हैवानात की कुछ पिक्चर्स भी आप देखेंगे और उनके बारे में सवालों जवाब भी देखेंगे। हो सकता है आगे जाके उनमें से कोई ऐसी मखलूक हमारी स्टेज पर भी फिजिकली भी आप देख सकें। जनाब, चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात। जी जनाब, दोनों टीमों से इस पे सवाल होंगे, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे, उस नंबर के पीछे किसी भी मखलूक की तस्वीर हो सकती है, उस पिक्चर के साथ फिर आपसे सवाल किए जाएंगे। बारी हैदराबाद वालों की है, पहले तो नंबर्स दिखाइए। अच्छा, नंबर्स चलते रहेंगे, आप जब स्टॉप कहेंगे तो वो नंबर रुक जाएगा और उसके पीछे वो फिर आपको पिक्चर नजर आएगी। जी, स्क्रॉलिंग होगी नंबर्स की। स्टॉप कह दिया जनाब, 3 नंबर पे जाके स्टॉप हुआ है। अब बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा जानवर या कौन सा मखलूक है, हैवान है? ये परिंदा है, ठीक है। अब इसके बारे में सवालात वो भी स्क्रीन पर ही आपको बताए जाएंगे। कव्वे के हलालो हराम होने के मुतालिक आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो हमारे देहात में पाए जाते हैं वो हराम है। हमारे दियार में जो पाए जाते हैं, हमारे दियार में जो पाए जाते हैं वो हराम है। आला हजरत फरमाते हैं ये कव्वे के हमारे दियार में पाए जाते हैं, ये सब हराम हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, एक और सवाल इसी जानवर से मुताल्लिक आपसे किया जाएगा, कव्वे को अरबी में क्या कहते हैं? कव्वे को अरबी में गुराब कहते हैं। गुराब कहते हैं। अच्छा, अब बात तो ये हुई थी कि कुरान में मज़कूर हैवानात, तो इसका जिक्र कुरान में कैसे आया है?
आयत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, वरना आप तर्जुमा भी सुना सकते हैं। फ़बअथ अल्लाहु गुराबन यबहथु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबी फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। तर्जुमा। तो अल्लाह ताला ने उस फ़बअथ अल्लाहु गुराबन यबहथु फ़िल अर्द, तो अल्लाह ताला ने कव्वे को भेजा कि जो ज़मीन में कुरेद रहा था, लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी, ताकि वह उसे दिखाए कि कैसे वह अपने भाई की लाश को छुपाए। काला या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब, तो उसने कहा कि हाय बर्बादी कि मुझे क्या हो गया कि मैं इस कव्वे की भी मिसल ना हो सका। फ़अवारिय सौअत अख़ी, कि मैं अपने भाई की लाश को छुपाता। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, तो इस तरह वो नादिमीन निदामत करने वालों में से हो गए। यानी ये काबिल और हाबिल के वाक़े की तरफ इशारा है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो वो अपने भाई की लाश को कांधे पे उठा के घूमता रहा, तो बाकायदा उसको ये सिखाने के लिए एक कव्वे ने बाकायदा अपने एक दूसरे साथी की कब्र खोदी और उसे दफनाया। तो पता चला कि यानी ज़मीन को कुरेद कर दफनाया, तो उससे गोया इसको सबक मिला कि मुर्दे को इस तरह दफनाया जाता है, क्योंकि उससे पहले दुनिया में किसी की गोया मौत नहीं हुई थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक बड़ा यूनिक वाक़या भी है और इसको तफसीर से पढ़ना भी चाहिए। इनसे 3 हमने गालिबन सवाल कर लिए हैं और ये तीनों जवाब इन्होंने दुरुस्त दिए हैं, तो इनको इसमें 6 नंबर दे दिए जाएं। जी 6 नंबर इन्हें मिलेंगे। अब बारी खानका शरीफ वालों की है, देखिए ये कौन सा नंबर सेलेक्ट करते हैं। सटॉप। जी जनाब, पहला नंबर आया है और अब बताइए कि इसके पीछे कौन सा जानवर या परिंदा है। जी अरे ये तो बहुत खूबसूरत परिंदा है। कौन, ये पता है कौन सा परिंदा है? हाय हाय सुभान अल्लाह, इसका जिक्र, ये बड़ा कमाल का वाकया है और ये अबाबील है। हाँ, बहुत सारे नाजरीन को शायद नहीं पता, बच्चों को उन्होंने सुना तो होगा, लेकिन अबाबील किसको कहते हैं, ज़रा दोबारा दिखाइए इसको। और ये मैं देखिए कुरान में जिन परिंदों का जिक्र है वो परिंदे आपको दिखाए भी जाएंगे और हम शाह साहब से कहेंगे कि कभी हमें हमारे हाथ में भी, हमारे स्टेज पर भी किसी परिंदे को लेकर या किसी भी जिस मखलूक का जिक्र वो लेकर आए इंशाअल्लाह। अबाबील, चले जनाब, अबाबील का सवाल पहला स्क्रीन पर आएगा। इसका मुकम्मल वाकया कुरान पाक की कौन सी सूरत में बयान किया गया है? जी इसका मुकम्मल वाकया कुरान पाक की सूरह फील में है। सूरह फील में बयान हुआ है। कोई आयत सुनाएंगे जिसमें इसका जिक्र है? व अरसलना अलैहिम तैरन अबाबील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, तैरन अबाबील। सूरह जो फील है उसमें बड़ा तफसीली ये वाक़या मौजूद है कि हाथी वालों के मुकाबले में अल्लाह करीम ने अबाबील के लश्कर को भेजा और उन्होंने छोटे छोटे कंकर, अब इतना छोटा सा परिंदा है और इसकी पंजे में कितने बड़े पत्थर आएंगे, छोटे छोटे कंकर थे, मगर क्या शान है मेरे रब की कि हाथी वालों के परखचे उड़ा कर रख दिए। जनाब इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। ये बताइए कि किस बादशाह कौन सा था जिसके लश्कर के मुकाबले के लिए भेजा गया? जी अबरहा बादशाह और उसका लश्कर। अबरहा बादशाह और उसके लश्कर पर ये जनाब भेजा गया। 3 सवाल हुए, तीनों सही जवाब दे दिए हैं। 6 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है नादरीन। तो ये हैवानात वाला हमारा सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब हम मूव करेंगे हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो ये फैसला कर देगा कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम आगे। याद रहे कि अब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जा रही हैं, 32-32 नंबर हैं। आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले आईटी मजलिस की तरफ से एक बहुत खूबसूरत प्रमोशन आई है। एक ऐसी उनकी एप्लीकेशन है जिसकी वो आपको तारुफ पेश करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। आशिकाने कुरान के लिए आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से अल कुरानुल करीम मोबाइल एप्लीकेशन में लर्न ऑनलाइन कुरान का फीचर शामिल कर दिया गया है, जिसके जरिए अब आप घर बैठे कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और रमजानुल मुबारक के मौके पर अल कुरानुल करीम मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करके इस फीचर से फायदा हासिल कीजिए। जी, कुरान की एक शानदार एप्लीकेशन हर मोबाइल में होनी चाहिए, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी
जनाब इस टीम में सफ़र को ज़्यादा अकेला करने के लिए हम एक एक टीम के इस्लामी भाई को स्वैप कर देते हैं ताकि बीच में भी कोई मशवरा ना कर सके और ये अकेले ही जवाब देना है। बड़ी दिलचस्पी ये है कि दोनों टीमें बिल्कुल टीम वाइज तो बराबर चल रही हैं। अब हर इस्लामी भाई पर अलग बोझ होगा कि उसकी एक गलती टीम को पीछे कर सकती है और इंशाल्लाह सही जवाब आगे कर सकता है। जी ये साहब का माइक ज़रा देखिएगा। ऐसा अभी एक मैसेज आया है और इस मैसेज ने मुझे भी गमगीन कर दिया है और वो ये है कि किसी ने मैसेज करके कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ज़हनी आजमाइश तशरीफ़ तो ला चुका है, लेकिन हमारे घर से एक फ़र्द कम हो गया है जो ज़हनी आजमाइश के रेगुलर व्यूवर्स थे। मेरी वालिदा इस कदर ज़हनी आजमाइश की शौकीन थी कि ज़हनी आजमाइश शुरू होने से पहले पहले सारे काम ख़त्म कर लेती और फिर बिल्कुल तवज्जो और लगन के साथ पूरा सिलसिला सुनती और पूरा साल इंतज़ार करती। उन्हें इस सिलसिले का पूरा साल इंतज़ार रहता था और अब्दुल हबीब भाई वो आपको चांद कह के पुकारती थी और जिस दिन ज़हनी आजमाइश का पहला सिलसिला होता उस दिन से लेकर फाइनल तक रोज़ाना टेलीविज़न पर से मिर्चों के ज़रिए आपकी नज़र उतारती। आज ज़हनी आजमाइश देखते हुए उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। अल्लाह पाक उन खातून की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके तमाम घर वालों को सब्र दे। देखे ना कि दुनिया से जाने के बाद भी उनकी अच्छी बातों का जिक्र हो रहा है कि माशाल्लाह वो इल्म दीन सीखने की इतनी शौकीन थी। अल्लाह उनको उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में खातून जन्नत का उन्हें पड़ोस नसीब फरमाए और घर वालों से भी गुजारिश है कि उनके लिए खूब इसारे सवाब करते रहें। जनाब आखिरी सेगमेंट है जो हमें बताएगा कि खानका या हैदराबाद अगले राउंड के लिए सीज़न 15 के पहले मुकाबले के विनर कौन सी टीम बनती है। जनाब तरीका ये होगा कि आपने सही कहना है या गलत कहना है और कुछ नहीं कहना है, ठीक है, और फौरी जवाब देने हैं। हर इस्लामी भाई से मैंने 5-5 सवाल करने। इलियास भाई से सबसे पहले सवाल करेंगे, आप तैयार हैं? कुरान की 2 सूरतें लफ्ज़े कद से शुरू होती हैं। गलत। कुरान की 3 सूरतें लफ्ज़ तबारकल लज़ी से शुरू होती हैं। सही। कुरान की ज्यादा आयतें हैं। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। शबे बरात 15 शाबानुल मुअज्जम को होती है। सही। जनाब कितनी गलतियां की हैं? पहले 2 सवाल गलत हो गए, 3 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब बारी राहील की है। हज का एक रुकन वकूफे अरफा भी है। सही। पहली सदी के मुजद्दिद इमाम आजम हैं। गलत। जन्नतुल बकी के बाद जन्नतुल माला दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है। सही। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो अहले मैशर को हुक्म होगा अपनी निगाहें झुका लें। सही। जबले नूर जबले हिरा का दूसरा नाम है। सही। जो रोज़े महशर जो हुक्म होगा वो हजरत आयशा के लिए नहीं, वो बीबी फातिमा के लिए होगा, खातून जन्नत के लिए होगा। एक गलती हो गई है मगर 4 नंबर हासिल कर लिए। नाजरीन फर्क आया है सिलसिले में मगर अभी मुकाबला बाकी है। फैजान की बारी है, हैदराबाद से ताल्लुक है, रुकू नमाज के फराइज में से है। जी सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा हैं। सही। अबू तुराब हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्नियत है। गलत। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। हजरत उस क्या कहा आपने? सही कहा। हजरत उस्मान गनी के वालिद का नाम गनी है। गलत। जनाब देखना यह है कि एक गलती कर गए हैं, 4 नंबर इन्होंने भी हासिल किए हैं। अब बारी है तैयब भाई की। फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। सही। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल जुमतुल मुबारक के दिन हुआ था। सही। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत सूरह फलक है। गलत। मस्जिद आयशा में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है। सही। सलातुत तस्बीह में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसकी तादाद 313 है। सही। जनाब कुछ गलतियां हुई हैं, 2 गलतियां इन्होंने भी कर ली हैं। अब नाजरीन इसका मतलब यह हुआ कि दोनों टीमों के नंबर एक बार फिर बराबर हो गए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं जो फैसला कर देंगे कि ये इस टीम में से कौन सी टीम आगे जाती है। और हाँ, अगर ये मुकाबला बराबर हो गया तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि बराबर होता है या फैसला सामने आ जाता है। अब बारी है हैदराबाद के इस्लामी भाई पहुंचे हुए हैं खानका शरीफ और उनका नाम है इसहाक अत्तारी। चलें जनाब, सूरह जिन कुरान पाक के 28वें पारे में है। गलत।
जो हिजरत करके मदीने आए थे उन सहाबा किराम को अंसार कहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत यमन की तरफ फरमाई। जंगे बदर में 14 सहाबा किराम शहीद हुए। 4 सही जवाब दिए, आखिरी में गलती कर दी है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब खानका शरीफ वालों को मुकाबला जीतना है तो 5 के 5 दुरुस्त जवाब देने होंगे। 4 सही जवाब पर मुकाबला बराबर हो जाएगा। 3 सही जवाब देंगे तो हैदराबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे। इस छोटी सी जान पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। क्या नाम है आपका बेटा? मुजम्मिल अहमद। बाकी लोग बैठ जाएं, अगर आप भी बैठना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, या मुजम्मिल रेडी हैं आप? जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, हौसले बुलंद हैं मुजम्मिल के। मुहद्दिसीन के शेखैन इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहलाते हैं। गलत। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा है। सही। सबसे पहले जबूर नाजिल हुई। गलत। तौरात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। गलत। मस्जिद नबवी तामीर होने से पहले इस जमीन पर चटियल मैदान था। सही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 2 गलतियां हो गई हैं जनाब मुजम्मिल से। इसका मतलब यह हुआ कि ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जब आखिरी सवाल हो रहा था तो मैं भी ये सोच रहा था कि 3 सही जवाब ये दे चुके हैं, 1 गलती की है। अब ये आखिरी जवाब सही दे देंगे तो ये मुकाबला टाई हो जाएगा और इब्तिदाई ज़हनी आजमाइश की हमारे लिए एक आजमाइश बनेगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर दिल छोटा ना करें, खानका शरीफ वालों को एक मौका ज़रूर दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक मुकाबला वो भी होगा जिस पे पीछे रह जाने वाली टीमों को मौका मिलेगा। मेरी गुजारिश है दोनों टीमें आगे तशरीफ़ लाएं। आप नाजरीन से सवाल जो हम करते हैं उसकी कुरानदाजी भी इंशाअल्लाह करेंगे और मजीद इंशाअल्लाह। जी सही साहब, इंशाअल्लाह। जी सोबान भाई, कुरानदाजी करेंगे। 11 नवंबर यानी आज ज़हनी आजमाइश में नाजरीन 12 नवंबर किए गए 12 नवंबर ज़हनी आजमाइश में नाजरीन से किए गए सवाल का जवाब। ये सवाल था शगुन की कितनी किस्में हैं? रिसाला बदशगुनी में इसका जवाब मौजूद है। शगुन की 2 किस्में हैं, अच्छा शगुन, बुरा शगुन, जिनके जवाबात मसूल हुए बिनते इमाम शेख अत्तारिया पन्याला, बिनते अब्दुल गफूर अत्तारिया फैसलाबाद, बिनते लियाकत अली सरगोदा, गुलाम ताहा बिन वज़ीर अहमद घोटकी, बिनते आसिफ अत्तारिया शेखुपुरा, बिनते लियाकत तिब्बा सुल्तानपुर, बिनते मेहंदी हसन अत्तारिया पाकपतन, बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन, बिनते मकसूद गुजरांवाला, बिनते शाहिद अत्तारिया सियालकोट, बिनते नदीम नोड़ा कराची, बिनते कमर रसूल अत्तारिया कोट सुल्तान। इनकी कुरानदाजी करते हैं। बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन। जनाब जो आपसे हमने करना है, जिसका जवाब आपने अगले सिलसिले में देना है कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद साहब का नाम क्या था। मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं वो SMS के ज़रिए अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले जवाब देंगे। और क्या क्विज एप्लीकेशन की जो हमारी कुरानदाजी है वो रेडी है? आइए, क्विज एप्लीकेशन में कौन खुश नसीब है जिनका जवाब दुरुस्त था और उन्होंने आज इनाम हासिल किया? जी आइंदा से सवाल भी दिखाइएगा और जवाब भी सही दिखाइएगा, फिर आईडीज जो है इंशाल्लाह, और राब्ता नंबर भी साथ नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 आईडीज हैं। आज का सही जवाब जिन्होंने दिया उनमें से इन 5 के नाम निकल आए हैं और हमारा जिस नंबर पर उन्होंने मैसेज करना है वो नंबर भी ज़रा स्क्रीन पर अभी आ जाता है इंशाल्लाह, तो उस पर आपने अपनी ये आईडीज़ मैसेज कर देनी है ताकि फिर 5 को इंशाल्लाह तहाइफ भेजे जाएंगे। हम हर सिलसिले में बेस्ट परफॉर्मेंस का भी इनाम देते हैं, तो वैसे तो माशाल्लाह सारे ही बेस्ट हैं, मगर मोहम्मद इसहाक अत्तारी से गुजारिश है आगे तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह आज हैदराबाद की टीम विनर भी हुई और इसमें इनका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा किरदार रहा। वैसे तो पूरी टीम बड़ी शानदार है माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में जो मदनी मुन्ने हैं उनकी कुरानदाजी हो रही है। 118 मदनी मुन्ने माशाल्लाह आप आगे आ जाएं। पहला इनाम ज़हनी आजमाइश सीजन 15 की कुरानदाजी का। अब बड़ों के लिए क्या बात है, नंबर भी बड़ा प्यारा आया है 112। अच्छा 112 में 11वीं भी है और 12वीं भी है, क्या बात है, आगे आ जाए माशाल्लाह। चले दोनों को तोहफा भी देंगे अदब और शौक के साथ तमाम इस्लामी भाई सलातुस्सलाम के लिए। अच्छा इंशाल्लाह सलातुस्सलाम के लिए खड़े हो जाएं।
ताजदारे हरम शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम करम मुझ पे या सैयदुल मुरसलीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं फंसना कयामत में मौला कहीं ऐ शफीए उमम लाज रखना तुम्हीं ऐ शफीए उमम लाज रखना तुम्हीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम दूर रह न दम टूट जाए कहीं काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम अब बुला लो मदीने में अतार को अब बुला लो मदीने में सगे अतार को अपने कदमों में रख लो गुनाहगार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम करम मुझ पे या सैयदुल मुरसलीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। माशाअल्लाह मदरी चैनल के नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है कि बिला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत इस वक्त माशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जामिअतुल मदीना के असातिज़ा कराम उलमाए कराम के साथ जलवा फरमा भी हैं और मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। और अब बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल के नाजरीन भी देख सकेंगे। किबला अमीर अहले सुन्नत स्क्रीन पर जलवा फरमा है, हम उनका दीदार भी कर रहे हैं। क्या हमारी आवाज़ अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पहुँच रही है? अगर ऐसी कोई सूरत बन जाए तो हम दुआ भी ले लें, सलाम भी अर्ज़ कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बराह रास्त हैं और ज़हनी आजमाइश का अच्छा हम हो गए लाइव। जी जी अब्दुल हबीब भाई की आवाज में दे दें। हमारे लिए अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि हम सबको अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। आज ज़हनी आजमाइश आपकी का आवाज हमें नहीं आ रही अब्दुल हबीब भाई। ठीक है ठीक है, तो आप शुरू फरमाएं। आप शुरू फरमाएं। आपकी आवाज आ गई है फरमाने पर। अच्छा, मैं बस ये अर्ज़ कर रहा था कि अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश ये है कि आज ज़हनी आजमाइश का पहला सिलसिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए इखलास की भी दुआ फरमा दें। और इस वक्त नाजरीन की बड़ी तादाद होगी। मदनी फूल भी इरशाद फरमाएं, फिर हम मदनी मुज़ाकरे में उम्मीद है कि मदनी चल के नाजरीन भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। ज़हनी आजमाइश का सिलसिले का आगाज़ मुबारक हो। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का अव्वल नंबर का सिलसिला नाजरीन के एतबार से। अब वो सवाब के एतबार से, कबूलियत के एतबार से तो मरने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल फाइनल नहीं कर सकते, मगर नाजरीन की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया भर में
دیگر ملک میں بھی دیکھا ہے میں نے کہ لوگ سنتے ہیں اس کو الحمدللہ. اور اس میں بھی بڑی تعداد جامعۃ المدینہ کے طلباء کی ہی ہوتی ہے. آج آپ کے پاس بھی جامعۃ المدینہ والے بیٹھے ہیں اور یہاں ٹیمز بھی جو ہوتی ہیں, جو ہماری سلیکشنز بھی ہوتی ہیں, اس میں اکثر جامعۃ المدینہ کے طلباء ہوتے ہیں اور دنیا والے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ میں کیسی پڑھائی اور کیسی ذہانت ہے کہ یہ اتنا زبردست تیاری کر کے اور جوابات دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ قابل فخر سرمایہ ہے. طلباء کرام, اساتذہ کرام بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. انہوں نے محراب و ممبر سنبھالنا ہوتا ہے, امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے. شکریہ حضور, بڑی مہربانی. آپ مدنی مذاکرہ جاری کیجیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس وقت ملک بھر کے جامعۃ المدینہ جو عالم بنانے کا جو ہمارا ادارہ ہے, شعبہ ہے, اس کے اساتذہ کرام جو پڑھانے والے ہیں, ناظمین جو ہیں اور دیگر جو مجلس اور دیگر جو اس کے ذمہ داران ہیں, ان کا الحمدللہ 3 دن کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. اور ماشاءاللہ ابھی امیر سنت کا بھی ایک مختصر سا ذہنی آزمائش کا سلسلہ یہاں چل رہا تھا, سوال جواب کا, اور اسی دوران ہم اس وقت آپ کے ساتھ براہ راست کنیکٹ بھی ہو چکے ہیں. تو آپ بھی اس ابھی یہاں سوال جواب بھی ہوں گے, تو انشاءاللہ آپ بھی سوال و جوابات سے فائدہ اٹھائیں اور خوب علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. عرض کر رہا تھا میں کہ سلام تحیت, ملاقات کا سلام جو ہوتا ہے اس کا جواب واجب ہوتا ہے. دیگر جیسے کسی نے مسئلہ دریافت کیا یا ویسے کوئی سوال کیا یا بھکاری آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں, اس طرح کی کئی صورتیں کہ جس میں جواب واجب نہیں ہوتا. یہاں بھی جو جواب دیکھے دیتا ہے تو جواب دینے میں حرج نہیں ہے, بلکہ دینا چاہیے. جن کو مسائل پتہ نہیں ہوتے وہ بدگمانی کرتے ہیں, پھر بدگمانی کر سکتے ہیں کہ اس نے جواب نہیں دیا, تو وہ بیچارہ خواہ مخواہ بدگمانی کے وبال میں پڑے گا اور غلطی خود اس کی ہوگی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں ترک واجب ہوا ہی نہیں ہے. اس کا خیال رکھنا ہے اور ان مسائل کا مطالعہ بھی کرتے رہنا ہے. یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں سلام کا جو باب ہے پڑھا تو ہوگا, لیکن ایک بار پھر غور سے پڑھ لیا جائے. جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کر تو وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور بھی مثالیں اس میں اچھی اچھی دی ہوئی ہیں کہ کہاں کا جواب دینا ہوتا ہے, کہاں کا نہیں وغیرہ. لیکن جواب تو سلام کا دینا چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ میں نے جو جواب نہیں دیا, میں ویسے بھی میری تو مصروفیت بھی شاید کچھ تھی ایسی کہ بعض اس مصروفیت میں بھی جواب نہ دینے کی صورت بن جاتی ہے.